You are most welcome. We are here again to discuss the poem The Psalm of Life. Students, the meaning of Psalm is the devotional song. In this poem, the poet describes the real meaning of the life. In the poem, the poet advises pupil to be the heroes in their lives. He asks them to live in present without thinking about the past and the future. This is a didactic poem where the poet's task is to instruct, guide, inspire, and motivate pupil to lead a useful life. The poem teaches basic human values and lays out a foundation for a prosperous ethical life. Now, the Psalm of Life, Jeevan Ki Prarthana. The poet of this poem is S.W. Longfellow. The full name of the poet is Henry Wordsworth Longfellow. Now, we are starting the explanation of the poem. First stanza. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. The poet says, यहाँ पर पोएट कहता है जीवन असल है. The meaning of real is सरल, and earnest means serious, sincerity. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Grave means कब्र, goal means लक्ष्य, और कब्र इसका लक्ष्य नहीं है. Dust thou art, to dust returnest. तुम, dust means धूल, thou means you, art means बने हो. तुम धूल से बने हो, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और तुम्हें वापस धूल में मिल जाना है. वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल. ये बात, जो ये लाइन है, डस्ट द आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, दिस लाइन वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल. ये लाइन हमारी आत्मा के लिए नहीं बोली गई है, क्योंकि द सोल इज इमॉर्टल. आत्मा कभी भी मरती नहीं है. सो the poet says that life is real, actual. Life is actual and life is sincere, and the grave is not its goal. The aim of life is not only to enjoy its pleasure and death, and you are made of dust, and you have to mix with the dust after death. So we are going to tell about the rhyming words of this stanza. Rhyming words in this stanza are earnest and returnest, goal and soul. There are two rhyming words in this stanza: earnest, returnest. First and third line, last word of the first line and last word of the third line, and second line goal and fourth line soul. So there are rhyming words: earnest, returnest, goal and soul. Now see the next stanza of this poem. Students, in this next stanza, not enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act that each tomorrow find us farther than today. पोएट कहता है, ना आनंद और ना ही दुख हमारे अंत का भाग्य, ना तो रास्ता है, बल्कि कार्य करते रहना ताकि हर एक कल हमें आज की तुलना में आगे पाए. यहाँ पर पोएट का कहना है कि हमारे जीवन का केवल
एक ही मकसद नहीं होना चाहिए कि हमें ये नहीं है कि केवल आनंद और ना ही केवल दुखों को झेलना ही हमारा जो है, हमें अपने भाग्य का यही अंत नहीं समझना चाहिए। ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि यही हमारे जो है जीवन के जीने के यही साधन है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, बल्कि हमें ऐसे कार्य करना चाहिए, हमें ऐसे कार्यों को करना चाहिए कि हमारा हर एक आने वाला कल फाइंड अस फार्दर देन टुडे, कि हम इतने अच्छे कार्य करें कि जो हम आज कार्य कर रहे हैं उससे भी अच्छा हमारा कल हो जाए, कि आज की तुलना में हमारा कल और भी बेहतर हो जाए। तो इसमें पोएट कहना चाह रहा है कि यहाँ पर मीनिंग है, एंजॉयमेंट मीन्स आनंद, सोरो मीन्स दुख, डिस्टाइंड मीन्स है यहाँ पर द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन के जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, जीवन का पूर्व निर्धारित लक्ष्य। डिस्टाइंड मीन्स होता है जीवन का पूर्व निर्धारित लक्ष्य। फाइंड्स अस फार्दर मीन्स आज से हम फाइंड अस फार्दर देन टुडे, इसका मतलब हो गया वी आर मेकिंग कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस, वी आर मेकिंग कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस, हम लगातार मेहनत करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे स्टैंजा का मीनिंग हुआ कि हमें अपने लक्ष्यों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि हम उसी के भरोसे बैठे रहें और हम आनंद और दुख को झेलते हुए अपना जीवन समाप्त कर दें। ठीक है, बल्कि हमें ऐसे कार्य करना चाहिए कि हम अपना आने वाला कल और भी अच्छा बना सकें। नाउ इन दिस स्टैंजा द राइमिंग वर्ड्स आर sorrow and tomorrow, way and today, sorrow and tomorrow, way and today are the rhyming words in this stanza. Now see the third stanza. In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb, driven cattle, be a hero in the strife. वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यहाँ पर पोएट ने इस संसार को एक युद्ध का मैदान माना है, युद्ध क्षेत्र माना है। उसने बोला है इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ लाइफ, वर्ल्ड मीन्स संसार, ब्रॉड मीन्स वेरी बिग, बहुत बड़ा, फील्ड ऑफ बैटल युद्ध का मैदान, युद्ध क्षेत्र। इन द बिवॉयक ऑफ लाइफ, बिवॉयक मीन्स होता है टेम्परेरी कैंप, बिवॉयक मीन्स टेम्परेरी कैंप, जो टेम्परेरी होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, बी नॉट लाइक डम, डम मीन्स गूंगे, ड्राइवन कैटल मीन्स भेड़ बकरी, जो मवेशी होते हैं, जो भीड़ में चलते चले आते हैं। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, संघर्ष में, स्ट्राइफ मीन्स संघर्ष में, संघर्ष, हीरो मीन्स नायक। तो यहाँ पे पोएट कहना चाह रहा है कि हमें इस दुनिया के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, हमें जो इस दुनिया में आए हैं, एक टेम्परेरी कैंप, जीवन का एक टेम्परेरी कैंप है, इस दुनिया में हमने युद्ध करना है, हमें सुख दुख के झेलते हुए हमें इस जीवन की युद्ध की लड़ाई करनी है, और हमें इसमें एक टेम्परेरी कैंप की तरह हम दुनिया में रहेंगे, हमारा परमानेंट कोई भी घर नहीं है। बी नॉट लाइक डम, और हमें ऐसा नहीं बनना है कि हम गूंगे लोगों की तरह कुछ भी ना बोले, जो भी कोई कुछ कह रहा है तो उसको ध्यान से वो उससे ऐसे ही जो भी कह रहा है उसी के अनुसार अपना काम करते रहें। एंड और हमें ये भी नहीं करना है कि हमें जो भी भेड़ बकरियों की तरह चले जाना है, और बी अ हीरो इन द स्टाइफ। पोएट ये कह रहा है कि हमें इस संघर्ष भरे जीवन में अपने आप को कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए कि हम अलग से एक हीरो के समान नजर आए। तो in this stanza the poet explains that life is full of struggle and difficulties, so we should not feel shy of these but do our duty in the battle of life.
Now, in this stanza, the rhyming words are battle and cattle, life and strife. यहाँ पर rhyming words हैं battle and cattle and life and strife. Now see the next stanza. This is the last stanza of the poem. Let us then be up and doing, with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. So, the meaning of this, let us then be up and doing, with a heart for any fate. Fate means bhagya. Still achieving, achieving means उपलब्धियां. ओके, स्टिल अचीविंग का मीनिंग है यहाँ पर द एम ऑफ लाइफ, कॉन्सिस्टेंट स्ट्रेनिंग. ठीक है, जीवन के लक्ष्य अपने उद्देश्य के अनुसार. स्टिल परसुइंग, परसुइंग का मीनिंग है प्राप्त करना, प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करना. स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, हमेशा मेहनत करना सीखिए और इंतजार करिए, फल की इच्छा करिए. Let us then be up and doing, with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. यहाँ पर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन ये हुआ कि पोएट लास्ट में हमसे ये कहता है, एडवाइस देता है हमको कि हमें भी क्रियाशील और ऊपर उठते रहना है. आओ हम सब भी ऊपर उठें और कर्म करें. विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, ऐसे दिल के साथ कार्य करें जो कैसे भी भाग्य के लिए तैयार हो. स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, और हमें किसी भी तरीके से प्राप्ति करना है, उपलब्धियों को हासिल करना है और लगातार कोशिश में लगे रहना है. लर्न टू लेबर एंड टू वेट का मतलब है कि हमें हमेशा कर्म करना चाहिए. लर्न टू लेबर, कार्य करना सीखो, कर्म करना सीखो, मेहनत करना सीखो. एंड टू वेट, और फल का इंतजार करो, फल की प्रतीक्षा करो. सो इन दिस स्टैंजा द एम ऑफ poet to say that we should do our work, do labor and to wait for result. Now it's okay.